چلیے آپ دیکھ رہے ہیں دن بھر سنم اعجاز کے ساتھ پی ڈی پی اسٹالوارٹ طارق حمید کرا کا آج استعفیٰ، اور استعفے پر ہم نے ریاکشن جاننا چاہا۔ ہم نے سب سے پہلے پوچھا نیشنل کانفرنس کے علی محمد ساگر سے۔ علی محمد ساگر صاحب، یور فرسٹ ریاکشن۔ ایسے دیکھیے، یہ ان کا اپنے پارٹی کا مسئلہ ہے، تو ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے، ہم پارٹی مسئلہ میں مداخلت نہیں کریں، لیکن اس نے کچھ سیریس چارجز لگائے ہیں پی ڈی پی کو، جی بڑے سیریس چارجز ہیں جو عام لوگوں سے اور جو ریاست کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان سیریس چارجز کا ان کو جواب دینا، کیونکہ طارق حمید کرا صاحب نہ صرف پارلیمنٹ ممبر تھے ان کے، بلکہ فاؤنڈنگ ممبر بھی ان کے، جو پی ڈی پی کے بڑے نزدیک جو بڑے لوگ جنہوں نے بنایا جماعت کو، اس میں لہٰذا میرے خیال میں اس نے جو سیریس چارجز لگائے ہیں، اور وہ اس سے پہلے نیشنل کانفرنس نے بھی جب یہاں حکومت بنی اس وقت کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا، شاید طارق کرا صاحب کے جو چارجز لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدشات جو اس وقت تھے وہ جسٹیفائی تھے، وہ پورے کیے گئے، میرے خیال میں ونڈیکیٹ کیے گئے۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو انہوں نے کہا کہ ناگپور سے ساری ڈائریکشن آتی ہے دفعہ 370 کو کمزور کرنے کے لیے، ڈیلیبریٹلی بی جے پی کو سپیس دی گئی، جو یہاں اسٹرکچر ہے اسپیشل پوزیشن کی شناخت کے لیے جو ہمارے کچھ مراد ہیں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں انڈسٹری پالیسی ہو یا دوسرے جو اقدام کے 35A کا سیکشن ہو یا دوسرے جو اقدامات کیے گئے، اس سلسلے میں یہ ایک عام آدمی نہیں کہتا ہے، یہ ایک اپوزیشن پارٹی نہیں کہتے، یہ ان کا فاؤنڈنگ ممبر ہو جو ان کا پارلیمنٹ ممبر ہے طارق کرا صاحب کہتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پی ڈی پی نے آئیڈیالوجی اور پولیٹیکل فلاسفی کے بیس پہ یہ الائنس نہیں کی تھی، بلکہ یہ صرف کرسی کے لیے کی گئی تھی، اس وقت کرسی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا گیا جو اب بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ میں ساگر صاحب آپ پہ پی ڈی پی کا ایک ریاکشن جاننا چاہوں گا، میں ان کا آپ کا ریاکشن آپ تک پہنچاؤں گا۔ میری پی ڈی پی سے بات کی، ان کا کہنا یہ کہ ہم نے تب الائنس کیا بی جے پی کے ساتھ جموں کشمیر کے تینوں خطوں کو ملانے کے لیے۔ کرسی کی بات ان کے بقول کہ اگر کرسی کا معاملہ ہوتا تو پھر انہیں نیشنل کانفرنس کانگریس سے انکنڈیشنل سپورٹ مل رہا تھا، کرسی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے الائنس جو کیا یہ صرف جموں کشمیر کے سبھی خطوں کو ملانے کے لیے کیا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، اب یہ ڈرامہ بازی بہت ہوئی اور اس میں بہت چرچا بھی ہوئی، اسمبلی میں بھی وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، کنوینس نہیں کر سکے۔ انہوں نے خود کہا، ان کے سپوکس میں جو ہیں انہوں نے کہا دو بار، ایک بار 3 مہینے انہوں نے پینڈنگ رکھا تو 3 مہینے کے بعد کہا کہ بی جے پی سے انہوں نے حکومت بنانی ہے۔ تیسری بار جب مفتی صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم سوچ رہے ہیں ایجنڈا آف الائنس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، جو مفتی صاحب کے ساتھ وعدے کیے گئے ان میں کچھ کارروائی نہیں ہوئی ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو انہوں نے کہا تھا وہ نہیں ہوئے ہیں۔ پھر وہ آپ دور مت جائیے، ان کا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ لیڈر ہے پی ڈی پی کا مظفر بیگ صاحب کا اسٹیٹمنٹ پچھلے 2 ہفتوں میں دیکھیے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا دیر از زیرو پروگریس آن ایجنڈا آف الائنس۔ اب اسے کیا جواب ملے گا کہ یہ انہوں نے صرف کرسی کے لیے ہی جو اتحاد کیا اور جو حکومت بنائی، اس کا صرف ایک پوائنٹ مقصد ہے، وہ ہے کرسی اور پاور اور کچھ نہیں۔ میں ساگر صاحب لاسٹ پہ آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا، کیا کشمیر میں سچویشن اس ٹائم کافی گریو ہے، اتنی گریو ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے جو لیڈر ہیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں؟ نیشنل کانفرنس سے اننت ناگ سے پہلے ہی افتخار مصگر دے چکے ہیں، آج پی ڈی پی سے اس نے دیا، کیا کہیں آپ کو سچویشن جو ہے گریو تو نہیں لگ رہی ہے؟ دیکھیے استعفیٰ دینے کے بعد ہمیں بہت کہا گیا میڈیا والوں نے کہ آپ محبوبہ جی سے کیوں نہیں کہتے استعفیٰ دے دے، جبکہ انہوں نے 2010 میں کہا تھا، عمر صاحب کو کہا تھا استعفیٰ دے تو آپ فیل ہو گئے۔ ہم نے بچکانہ سیاست نہیں کیا، نہ ہم وہ سیاست کو پسند کرتے ہیں، ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ محبوبہ جی کو استعفیٰ دینا چاہیے، لیکن ہم نے یہ کہا کہ ان کو خبردار کیا، اسمبلی میں بھی کیا، اسمبلی باہر سے بھی کیا، کہ اس کے بی جے پی اور اس کے ساتھ الائنس کرنے میں کیا کیا نقصانات ہیں۔ یہ ان کا نعرہ تھا بولی سے بات بنے گی، گولی سے نہیں، لیکن اب الٹا ہوا، آپ بولی سے نہیں بنتی، آپ گولی سے ہی وہ بات بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، باقی جو استعفے کی بات ہے یہ تو پرسنل ان کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتے، نہ ہماری جماعت میں ابھی تک آج کے دم تک ہم نے ان سے نہیں کہا کہ استعفیٰ دے دو۔ اپوزیشن پارٹی جو حادثات ہوئے، جو بہت سی چیزیں ہوئی، آج جب یہ پہلی دفعہ ہسٹری آف دا اسٹیٹ میں کہ
ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी गई, जामिया मस्जिद में और आस्थान आलिया में नमाज ईद नमाज पर पाबंदी, और ईद के दिन कर्फ्यू लगाया गया और ईद के दिन 2 आदमियों को शहीद किया गया, हज़ारों की तादाद में जख्मी लोग हैं, हज़ारों की तादाद में गिरफ्तारियाँ की गई। ये सब चीज़ें लोगों के सामने हैं, हमें इसमें वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिकली ये है कि हमने उस वक्त भी कहा था RSS के साथ अलायंस रियासत के मुफाद में नहीं है, ये रियासत की मुफाद की दुश्मनी के बराबर है, और आज उनके पार्लियामेंट मेंबर ने उसी बात को दोहराया और उसकी तस्दीक की। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे और हमने इनसे पूछा जिस तरह की क्या है आपका रिएक्शन और क्या कहेंगे आगे के हवाले से, लेकिन PDP के हलकों से भी हमें रिएक्शन मिला और PDP ने अपना जो रिएक्शन दिया है उसमें PDP के नहीं बल्कि निज़ामुद्दीन भट्ट ने एक स्टेटमेंट के ज़रिए इस पर रिएक्ट किया और उनका कहना है कि अगर सरकार बनाना ही PDP जिस तरह इल्ज़ाम लगाया तारिक हमीद कराने की सरकार के ख़िलाफ़ जो गठजोड़ हुआ तो उसके ख़िलाफ़ हुए, तो इनका निज़ामुद्दीन भट्ट का कहना है कि अगर सरकार बनाना ही PDP का मकसद होता तो यहाँ ग्रैंड अलायंस के नाम पर PDP को नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दूसरी जमातों से अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन PDP ने उस वक़्त जम्मू कश्मीर के तीनों खितों को मिलाने के लिए ये गठजोड़ किया था। और तारिक हमीद करा बकौल निज़ामुद्दीन भट्ट जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है, तारिक हमीद करा आज कश्मीर की सूरत हाल पर वाविला कर रहे हैं, लेकिन क्या तारिक हमीद करा साहब कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं जब वो ये बताएंगे कि उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े ऐवान यानी पार्लियामेंट में पिछले अपने 2 साल के दौरान कोई भी जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की हो या बयान दिया हो या कोई भी जम्मू कश्मीर का मामला वहाँ पे उठाया हो पिछले 2 साल के दौरान? आज वो वाविला कर रहे हैं कश्मीर की सूरत हाल पे, ये कहना है निज़ामुद्दीन भट्ट का। और निज़ामुद्दीन भट्ट से तीसरी बात निज़ामुद्दीन भट्ट ने जो कही है कि अगर तारिक हमीद करा साहब अलायंस के ख़िलाफ़ थे तो महबूबा मुफ्ती का नाम बहसीत PDP लीडर के किसने तजवीज़ किया था, ये तारिक हमीद करा साफ करें, ये बताया है PDP ने। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल भी और उसके साथ PDP का है। लेकिन अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि तालीम का मामला और तालीम के मामले के साथ साथ आपको याद ही होगा कि वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पहले ही जम्मू कश्मीर में सूरत हाल के हवाले से ये भी बताया था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर सूरत हाल ठीक कराई जाएगी, और उसके हवाले से फ़िलहाल ज़मीनी सतह पर कुछ देखा नहीं जा रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह की तरफ से हालिया बयान के बाद अब जम्मू कश्मीर सरकार भी स्कूलों में दर्स तदरीस के निज़ाम को बहाल करने की कोशिशों में तेज़ी ला रही है। और आज रियासती वज़ीर तालीम नईम अख्तर ने आवाम से अपील की कि वो तालिब इल्मों का वक्त ज़ाया न करते हुए स्कूलों में कामकाज को बहाल करने में सरकार को अपना ताउन फराहम करें। वज़ीर तालीम ने यह भी बताया कि इन हालात में जहाँ दुकानदार सुबह शाम हल्का फुल्का कामकाज करता है ताहम तालिब इल्म का वक्त ज़ाया होता है और इससे रियासत का मुस्तकबिल तारीख बनता जा रहा है। उन्होंने फ़लस्तीन और श्रीलंका की मिसाल भी दी और कहा कि ऐसी सूरत हाल में वहाँ भी स्कूल कभी बंद नहीं हुए बल्कि स्कूलों को तरजीही बुनियादों पर खोला जा रहा था। अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि वादी कश्मीर में पिछले 69 दिनों के दौरान सबसे ज़्यादा असर जो है वो तालीम पर पड़ा है। 69 दिनों से तालीमी इदारे बंद हैं। इससे पहले भी ईद की छुट्टियां और समर वेकेशन के हवाले से करीबन 15 दिन जो है कश्मीर के तालीमी इदारे बंद रहे थे, और इसी पर नईम अख्तर ने आज बात की। राशन डिपोज़ काम कर रहे हैं, सुबह शाम कोई दुकानदार भी काम करता है और हम अपने खाने पीने की चीज़ें भी हासिल कर रहे हैं। अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, शाली कट रही है, फ्रूट आ रहा है, बाज़ार में जा रहा है, ट्रांसपोर्ट जितना उनके लिए ज़रूरी है गारमेंट मुयस्सर कर रही है और लोग कामकाज कर रहे हैं। लेकिन एक शोबा अगर आप देखें बिज़नेस के अलावा, एक शोबा वो तालीम का है जहाँ बिल्कुल मुकम्मल एक सकूत छाया हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। और ये जो 14 लाख बच्चे हमारे यहाँ पे कश्मीर वैली में स्कूलों में जाते हैं, इनका 1 साल अगर ज़ाया होगा तो 14 लाख साल ज़ाया हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी ये एक बदकिस्मती होगी हमारी कौम के लिए। और इसी तरह से हमारा कोई 1 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ हमारे कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इम्तिहान तो वक्त पे ही होंगे ज़ाहिर है, क्योंकि वक्त किसी के रुकता नहीं है। और कल को
कंपटीशन होगा। जो बच्चे आज 12वीं जमात में यहाँ इम्तिहान देंगे, कोई बहुत से लोग मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं जी अब आप इसमें सिलेबस में कर्टेलमेंट करो। मैंने कहा सिलेबस में मैं अगर कर्टेलमेंट करता हूँ तो कल को तो उनको कंपटीशन में बैठना है दूसरे बच्चों, रियासत के दूसरे हिस्सों के बच्चों के साथ, बाकी मुल्क के बच्चों के साथ। यहाँ तो आप औने पौने दामों पास हो जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे। तो इसीलिए मैं आज सब लोगों से, वालिदैन से, समाज के लीडरान से, रहबरों से, सबसे गुजारिश करता हूँ, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स से, कि इसमें हाथ बटाएं, कि किसी तरह से स्कूल काम करें, कॉलेज काम करें। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, सब लोगों को मालूम है कि दुनिया के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ किसी न किसी बात पे गड़बड़ पेरिनियल रही है, सालों दहाइयों चला है। जैसे आपका फ़लस्तीन में है, यहाँ श्रीलंका में हो गया। तो लेकिन वहाँ तो उन्होंने स्कूल कभी बंद होने नहीं दिया। तो मैं सब लोगों से, हमारे जो लीडरान हैं किसी भी पार्टी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के, या हमारे जो दूसरे हुर्रियत के रहनुमा हैं, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि क्या हम एक अनपढ़ कौम पीछे छोड़ के जाएंगे तो तारीख़ हमें हमारे लिए क्या कहेगी, क्या विरासत छोड़ के हम जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों से अपील है, मेरे बच्चों, कल को चाहे हालात कोई भी डगर ले लें, हमारा कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम, जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक आपका कोई मुस्तक़बिल नहीं। चलिए, तालीम पर नईम अख्तर का बयान, नईम अख्तर की अपील। लेकिन अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चले कि वादी कश्मीर में फ़ोर्स पर लगातार इल्ज़ाम आयद होते रहे। दौरान शब फोर्सेस के लोग घरों में घुसते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं। और मारूफ समाजी कारकुन और बडगाम की मारूफ समाजी कारकुन मुंतज़र महिदीन ने आज अपने एक बयान में बताया कि बडगाम ज़िले में शबाना छापों के दौरान मुबैना इमलाक की तोड़ फोड़ और ज़्यादतियों पर आज उन्हें एहतजाज करते हुए कहा कि ये सिलसिला अब दराज हो रहा है और इंतज़ामिया तमाशाई बनी हुई है। उन्हें तशवीश का इज़हार करते हुए बताया कि यहाँ इंसानी हकूक़ की पामालियाँ अरूज पर हैं और सरकारी सतह पर बेबसी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत के असल मसले को हल कराने की कोशिश नहीं की जा रही है और अरबाब इक़्तिदार लोगों के ज़ख्मों की मरहम के बजाय अपने बयानात से नमकपाशी कर रहे हैं। मुंतज़र महिदीन का बयान, बडगाम से इनका ताल्लुक़, और ये सिटीज़न काउंसिल के साथ भी रहे हैं, सियासत के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, सूरत हाल में बताया था कि श्रीनगर में दौरान शब कैफ्टेरिया को नामालूम बंदूक बरदारों ने नजर आतिश किया और द्रबगाम पुलवामा में एक ऑर्चिड को, बगीचे को भी दौरान शब कुछ अफराद या कुछ लोगों ने उसे काट के तबाह बर्बाद किया है। लाखों रुपए का एक शहरी के बगीचे को नुकसान पहुंचा गया है और लाखों रुपए का इस बाग मालिक को नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे भी सवाल कि ये नामालूम अफराद कौन हैं। जम्मू कश्मीर की तारीख़ में फ़ौजी भी होते हैं, यहाँ मिलिटेंट भी है, यहाँ दूसरे लोग भी हैं, इख़वानी भी हैं, सरेंडर भी हैं, लेकिन नामालूम तो हैं। लेकिन ये नामालूम को जानता और पहचानता कौन है? और इन नामालूम अफराद को जानने और पहचानने की न सिर्फ आवाम की ज़िम्मेदारी है बल्कि सरकार की भी ज़िम्मेदारी है। और इन नामालूम अफराद को बेनकाब करे जिन्होंने रात को कैफ्टेरिया को जलाया, हमारी इमलाक को, जम्मू कश्मीर के लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। और आज दिन में एक शख्स के 5 कनाल बगीचे पर नुकसान किया, उसके दरख्त के हिस्से वो काट दिए, पेड़ काट दिए और बाग मालिक को नुकसान पहुंचाया, हमारी इकोनॉमी को तबाह किया। ये नामालूम अफराद ढूंढने पड़ेंगे सबको, आवाम को भी, सरकार को भी, उनको बेनकाब करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल आज के दिन भर में बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि ऊपर वाले ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।